Hello everyone, this is our next lecture on distributed operating system. This is unit 5. In this unit, we are going to complete replication and consistency. So in this lecture, we are going to cover replication management, how data replication work, reason for replication and client initiated replication. So we are going to cover replication management first. Okay. So what is data replication? Data replication. So data replication is a process in which the data is copied at multiple locations, different computer or server, to improve the availability of the data. In distributed system, replication normally refers to creating multiple copies of the data. So data replication is the process in which data is copied at multiple locations, like in different server or different computer. Okay. Why we use data replication? To improve the availability of the data. Okay. So in distributed system, replication normally refers for multiple कॉपीज ऑफ डेटा. सो डेटा रेप्लिकेशन क्यों यूज होता है? किसी भी एक सिंगल डेटा कॉपी ऑफ किसी भी एक सिंगल डेटा कॉपी को मल्टीपल कॉपीज में हम लोग क्रिएट करते हैं. सो एक ही कॉपी की एक ही डेटा की नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करना. Data will be same but copies will be different. Okay. So replication in computing involves sharing information so as it ensure consistency between redundant resources such as software or hardware component to improve reliability, fault tolerance or accessibility. So replication in computing involves sharing information. Why? To ensure the consistency between redundant resources such as software or hardware component. Why? To improve the reliability, fault tolerance or accessibility. Okay. An important issue in distributed system is the replication of the data. ये जो replication of data है, ये important issue है distributed system में. How? Data are generally replicated to enhance reliability, to improve the performance. Data is generally, why we replicate the data? To improve the reliability, to enhance the reliability and to improve the performance. Okay. One of the major problem is keeping replicas consistent. अब डेटा की कॉपीज की हमने रेप्लिकास तो बना ली, बट कैन वी मेक देम कंसिस्टेंट? ये जो मेन प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आता है. इनफॉर्मली दिस मीन्स दैट व्हेन वन कॉपी इज अपडेटेड वी नीड टू इंश्योर दैट अदर कॉपीज आर अपडेटेड एज वेल. ओके. इसका मतलब जब हम एक कॉपी को अपडेट कर रहे हैं, ओके, हमने क्या किया? डेटा की नंबर ऑफ कॉपीज बना दी एंड वी यूज दैट कॉपीज ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट? बट इफ यू अपडेट वन कॉपी एट वन प्रोसेसर then you have to update all the copies as well. Okay, otherwise the replica will no longer be the same. अगर आपने first copy में data update कर दिया and you haven't changed the data in next copy, तो क्या होगा? फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी जो होगी वो डिफरेंट कंसीडर होगी, क्योंकि फर्स्ट वाली में पुराना डेटा होगा, सॉरी जो सेकंड वाली होगी उसमें पुराना डेटा होगा एंड देन फर्स्ट कॉपी हैज न्यू डेटा. तो वो क्या हो जाएगा? वो रेप्लिकाज नहीं रहेंगे, दे विल बी कंसीडर एज डिफरेंट डेटा फाइल्स, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी टेक अ डिटेल लुक at what consistency of replicated data actually means and the various way to that consistency can be achieved. इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं? जो रेप्लिकेशन है डेटा की वो कंसिस्टेंट कैसी रहेंगी, वेरियस वेज हम लोग देखने वाले हैं ताकि जो कंसिस्टेंसी है वी कैन अचीव दैट. ओके. सो वन कॉमन यूज ऑफ डेटा रेप्लिकेशन इज फॉर डिजास्टर रिकवरी. जहां सबसे ज्यादा डेटा रेप्लिकेशन यूज होती है दैट इज डिजास्टर रिकवरी, टू इंश्योर दैट एन एक्यूरेट बैकअप एग्जिस्ट एट ऑल द टाइम इन केस ऑफ कैटास्ट्रोफे, हार्डवेयर फेलियर और सिस्टम ब्रीच वेयर डेटा इज कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. अभी क्या हुआ? डिजास्टर हुआ कोई, ठीक है, उसमें क्या है? हमें रेप्लिकेशन रखना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उस टाइम पे क्या एक्चुअल काम हुआ था. वो डेटा जो है हमें टाइम टू टाइम क्या है वो अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई सिस्टम ब्रीच ना हो और कोई डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके. ठीक है. ओके. सो in this diagram you can see that user A, user B and user C are sharing a same object, right? They are interchanging the objects. Okay. So in diagram 1 you can see that user A is accessing the object, user B is accessing the object and user C is accessing the object. So इसमें क्या होता है कि लाइक जब ये ऑब्जेक्ट को यूजर बी एक्सेस कर रहा है तो यूजर सी कांट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट एंड यूजर ए कांट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, राइट? सो वेटिंग पीरियड में जा रहे हैं ना वो लोग जो बचे हुए हैं. जो एक है वो उसको यूज कर रहा है बट द अनदर टू आर इन वेटिंग स्टेट. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? उसी ऑब्जेक्ट की रेप्लिकास बना देंगे, राइट?
अगर हमने उस डेटा की रेप्लिकास बना दी तो यूजर बी भी उसको यूज कर पाएगा, यूजर सी भी इसको यूज कर पाएगा एंड यूजर ए कैन ऑल्सो यूज दिस रेप्लिका। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी एंड द परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, और जो स्पीड है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा कि data are generally replicated to enhance reliability to improve performance. One of the major problem is keeping replica consistent. Okay, so अगर हमने ये जो रेप्लिका है ये ऑब्जेक्ट यूजर बी के पास है, दिस रेप्लिका इज इन यूजर सी और ये यूजर ए के पास है, और आपने क्या किया, यूजर ए पे के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट कर दिया, बट यू हैवंट अपडेटेड द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये जो होगा ये न्यू बन जाएगा एंड आपस में इनका कोई रेप्लिकेशन नहीं रहेगा, बिकॉज जो डेटा है वो दोनों का सेम नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो अपनी डेटा की कॉपीज हैं उनको हमेशा अपडेट करना है, मतलब एक को अपडेट किया तो उसकी रेप्लिकास को भी अपडेट करना है। ओके, सो हाउ डेटा रेप्लिकेशन वर्क, रेप्लिकेशन इन्वॉल्व राइटिंग और कॉपिंग द सेम डेटा टू डिफरेंट लोकेशंस, राइट। रेप्लिकेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स राइटिंग और कॉपिंग द सेम डेटा टू डिफरेंट लोकेशन, सेम डेटा को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर लिखना और कॉपी करना इज रेप्लिकेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कैन बी कॉपीड बिटवीन टू ऑन प्रीमाइसेस होस्टेड बिटवीन होस्ट इन डिफरेंट लोकेशन टू मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस ऑन द सेम होस्ट और टू और फ्रॉम अ क्लाउड बेस्ड होस्ट, राइट। तो डेटा कहाँ कहाँ कॉपी हो सकता है, इन टू वन प्रीमाइसेस होस्टेज, मतलब एक ही जो अलग अलग होस्ट हैं एक ही प्रोमाइस के अंदर, उसके भी अंदर भी हो सकता है, राइट। एक ही लोकेशन के ऊपर दो प्रोमाइसेस हैं, वहां पे भी डेटा शेयर हो सकता है, एंड डेटा कैन बी शेयर्ड इन होस्ट लोकेशंस, मतलब डिफरेंट लोकेशन। अगर हमारे जो होस्ट हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हैं, यू कैन यूज देयर, ओके। और डेटा कैन बी कॉपीड ऑन डिमांड और टू बी ट्रांसफर इन बल्क्स ऑफ, और इट कैन बी on the multiple storage devices on the same host, और it can be from cloud based। cloud क्या है, बहुत बड़ा है, कहाँ भी आप जो है डेटा को रेप्लिकेट कर सकते हैं। डेटा कैन बी कॉपीड ऑन डिमांड और टू बी ट्रांसफर्ड इन द बल्क ऑफ बैचेस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। डेटा क्या हो सकता है, बल्क में भी कॉपी हो सकता है और ऑन डिमांड भी कॉपी हो सकता है, राइट। सो डेटा according to schedule or be replicated in real time as well, data is written, changed or deleted in the master source। मतलब कि रेप्लिकेशन डेटा का क्या है, अगर आपने कहीं पे डेटा को डिलीट किया है तो वो हर जगह से डिलीट होना चाहिए, अगर आपने डेटा को अपडेट किया है तो हर जगह से अपडेट करना चाहिए, अगर आपने कहीं कुछ उसमें कुछ राइट किया है तो आपको हर एक रेप्लिका पे राइट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ डेटा रेप्लिकेशन वर्क्स। सो इसका रेप्लिकेशन का अगर आपको डायग्राम भी आप बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक द डायग्राम, राइट। ये आप डायग्राम यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको ये पूरा एक इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो, एक ऑब्जेक्ट लेके, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इनको इसको असाइन कर सकते हो, इसको यूजर सी को असाइन कर सकते हो एंड इसको यूजर ए को असाइन कर सकते हो, और आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी बना सकते हो, आप एक स्मॉलर नेटवर्क भी बना सकते हो, आप एक क्लाउड बेस का डायग्राम भी बना सकते हो, राइट। इट्स अप टू यू, आप उस चीज को कैसे एलैबोरेट कर पा रहे हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो पूरा बता सकते हैं कि आपने अगर डेटा को यूजर ए के पास से अपडेट किया है तो यू हैव टू अपडेट दैट डेटा ऑन यूजर बी और यूजर सी ऑल्सो, राइट। इफ यू राइट एनीथिंग ऑन object 1 in user A, you have to write everything on that user B and user C, right? If you deleted the data from user A, if you deleted that copy from the user A, then you have to delete that copy from user B and user C, okay? So now next topic is benefits of data replication. So as we already हमने पढ़ लिया है कि data replication हम लोग करते क्यों है, right? But आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसके benefits क्या हैं। So by making data available on multiple hosts or data center, data replication facility the large scale sharing of data among system and distributed the network load among multi-system organization can accept to see benefit including मल्टीपल डेटा। जब डेटा को हम मल्टीपल होस्ट या डेटा सेंटर पे अवेलेबल कर देते हैं, डेटा रेप्लिकेशन जो होती है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेटा को मल्टीपल लोकेशंस पे या बहुत बड़े बड़े नेटवर्क पे भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इफ वन सिस्टम गोज डाउन ड्यू टू फॉल्टी हार्डवेयर, malware attack और अनदर प्रॉब्लम, द डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। ओके, तो बाई चांस अगर आपका जिसे हमने ये डायग्राम में देखा, ये डायग्राम में हमने देखा कि अगर
यहाँ पे क्या है, यूजर ए है, यहाँ पे यूजर बी है, यहाँ पे यूजर सी है, राइट। अगर बाई चांस हमारा यूजर ए के पास ये डेटा है, ये वाला डेटा जो है वो यूजर ए के पास है, आप सोच सकते हो ये वाला डेटा यूजर ए के पास है, और यूजर ए जो है वो मतलब बंद हो गया, अपना फेल हो गया, तो आप यहाँ से भी तो ये डेटा को एक्सेस कर सकते हो ना, क्योंकि सेम डेटा ही, डेटा की जो कॉपी है वो यूजर बी और यूजर सी के पास भी है, राइट। तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है वो इम्प्रूव होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। हैविंग द सेम डेटा इन मल्टीपल लोकेशन कैन लोअर डेटा एक्सेस लेटेंसी सिंस रिक्वायर्ड डेटा कैन बी रिट्रीव क्लोजर टू वेयर द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। जहां से कोई चीज नजदीक पड़ रही है, अभी आप सोच सकते हैं कि आप अपने प्लेस पे बैठे हैं, राइट। आपकी सेम चीज आपको 2 मार्केट्स में मिलती है, आप सोच सकते हो। अभी आप डी मार्ट का एग्जांपल लीजिए, आपके घर के पास भी एक डी मार्ट है एंड एक थोड़े से डिस्टेंस पे भी डी मार्ट है, तो आप कहाँ पे जाना ज्यादा आपको कन्वीनियंट लगेगा, अपने घर के पास वाले के पास ना। तो सेम एम्प्लाइज है नेटवर्क, कैसे परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज होगा, अगर मल्टीपल लोकेशन के ऊपर डेटा है तो वो जो सबसे क्लोजर जहां पे उसको डेटा मिलेगा वहां से वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। कोई भी चीज आपको पास में मिल रही है तो आप उसी को यूज करोगे ना, सेम चीज की बात कर रही हूँ मैं। लाइक डीमार्ट अगर आपको घर के पास पड़ रहा है तो आपको क्या जरूरत है इतना दूर जाने की, पूरा पेट्रोल खर्चा करने की एंड ऑल सब कुछ, राइट। आप क्या करेंगे, डीमार्ट पास वाले पे जाएंगे, आपको जो भी चीज चाहिए आप लेके आएंगे एंड यू कैन यूज इट, राइट। सो दिस इज इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। मैंने आपको डीमार्ट का जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, ओके। नेक्स्ट इज इंक्रीज डेटा एनालिटिक्स सपोर्ट्स। So what is this? This is replicating data to a data warehouse, empower distributed analytics teams to work on common project for business intelligence, right? इससे क्या होगा, replicating data, अगर आप replicate कर रहे हो डेटा को वेयर हाउसेज में, अगर वेयर हाउसेज यू नो ना कि जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के वेयर हाउसेज होते हैं ना अलग अलग, और आप बोल सकते हैं जैसे डेटा होता है वेयर हाउसेज में आप रख सकते हो। सो वेट, so replicating data to data warehouse empowers distributed analytic teams to work on common project for business intelligence, okay. After that the point is improve test system performance. Data replication facilitates the distribution and synchronization of data for टेस्ट सिस्टम दैट डिमांड फास्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी, ओके। उससे क्या होगा, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी। डेटा रेप्लिकेशन अगर फैसिलिटी आपको मिल रही है तो ऑटोमेटिकली जो डेटा की एक्सेसिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। आप कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि डेटा रेप्लिकेटेड है, हर जगह पे डेटा रेप्लिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप डेटा को इजीली एक्सेस कर पाओगे, तो उससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, सॉरी, ओके। After that, the reason for replication, okay. There are 2 primary reasons for replicating data. First one is reliability and second one is a performance. So first one is reliability. So data are replicated to increase the reliability of the system. Data को हम replicate क्यों करते हैं, for increase the reliability, okay. If a file system has been replicated, it may be possible to continue working after one replica crashes by simply switching to another replicas, right. अगर एक replica आपकी crash हो जा सकती है, we can work on another replicas, we can switch our work to another replicas, right. Also by maintaining multiple copies, it become possible to provide better protection against corrupted data. अगर आपने multiple copies जो हैं वो डेटा की बना के रखी हैं, तो आपका अगर डेटा भी करप्ट हो जाता है तो एक बेटर प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द कॉपी ऑफ दैट डेटा, राइट. फॉर एग्जांपल, मैंने इमेजिन देयर आर 3 कॉपीज ऑफ अ फाइल एंड एवरी रीड एंड राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ईच कॉपी. ओके, we can safeguard ourselves against a single failing write operation by considering the value that is returned by at least 2 copies as being correct one, right. अगर एक में कुछ राइट ऑपरेशन का कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा, you have the another copy of the data, so the reliability will be improved. Okay, next one is performance. So performance replication for performance is important when the distributed system need to scale in number and geographical area. Scaling in numbers occurs, for example, when an increasing number of processes need to access the data that are managed by a single server. In that cases, performance can be improved by replicating the server and subsequently dividing the work. So replication for performance कैसे important हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इट नीड्स टू स्केल इन नंबर एंड जियोग्राफिकल एरिया. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम
एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होता, इट इज फॉर जियोग्राफिकल एरिया, राइट। सो अगर आपने नंबर स्केल जो अपने सिस्टम है उनको आप बढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल व्हेन वी इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस नीड टू एक्सेस द डेटा that are managed by a single server. In that case, performance can be improved by replicating the server and subsequently dividing the work. Okay? आप जब अपने काम को ही डिवाइड कर दे रहे हो, ये तो नॉर्मल भी है, मैंने आपको एक बहुत हम सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कॉलेज के प्रोजेक्ट का। अगर आप अपने काम को चार लोगों में डिवाइड कर रहे हो तो वो काम ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उससे क्या होगा, काम का स्पीड अप भी बढ़ेगा एंड द अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। ओके, scaling with respect to the size of the geographical area may also require replication. The basic idea is that by placing a copy of data in the proximity of the process using them, the time to access the data decrease. Okay, if the replication help to improve reliability and performance, who could be against it? अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, रीजन फॉर एप्लीकेशन, राइट। हम रेप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, बट अगर रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके खिलाफ क्यों है, रेप्लिकेशन के खिलाफ कौन है, हु कुड बी द अगेंस्ट टू इट, राइट। तो उसके लिए फैक्टर्स कौन से हैं, प्राइस, टाइम एंड बैंडविड्थ। सो द फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकंड वन इज टाइम एंड थर्ड वन इज बैंडविड्थ। ओके, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ प्राइस टू बी पेड व्हेन डेटा आर रेप्लिकेटेड। जब हमें डेटा को रेप्लिकेट करना पड़ता है तो उसकी अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, बिकॉज द प्रॉब्लम विद रेप्लिकेशन इज दैट हैविंग मल्टीपल कॉपी मे लीड टू कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। अगर हमने किसी डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखी हैं तो वो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। व्हेनेवर अ कॉपी इज मॉडिफाइड दैट द कॉपी बिकम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, consequently modification have to be carried out on all the copy to ensure the consistency, right? So basically क्या है, एक कॉपी पर अगर आपने कोई अपडेशन किया है तो बेसिकली आपको नेटवर्क में उसके जितने नंबर ऑफ कॉपीज हैं उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए यू हैव टू अपडेट ऑल द कॉपीज इन द नेटवर्क, राइट। सो exactly when and how those modification need to be carried out determine the price of replication. उससे क्या होगा, कब उनको चेंज करना है, ये क्या काम करेगा, ये उसकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। ओके, सो कीपिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा मल्टीपल लोकेशन लीड टू हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसर नीड्स। ऑब्वियसली एक चीज को आपको ज्यादा जगह पे स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, राइट, और जो प्रोसेसर है वो भी ज्यादा चाहिए उस पर काम करने के लिए। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। After that, the point is time. So, implementing and managing a data replication system require dedicated time for an internal team. अगर किसी काम को आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है, बार बार रेप्लिकेट करना है चीजें को, तो उसको करने के लिए अभी आपको एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसी काम को 10 बार करने के लिए टाइम तो जाएगा ही, राइट। सो टाइम इज द फैक्टर। ओके, लास्ट वन इज बैंडविड्थ. So maintaining consistency across data copy require new procedure and add traffic to the नेटवर्क। सो बेसिकली अगर आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है डेटा के ऊपर तो उसके लिए आपको न्यू प्रोसीजर्स ऐड करने पड़ेंगे, न्यू ट्रैफिक्स ऐड करने पड़ेंगे नेटवर्क में। सो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द डेटा एप्लीकेशन, राइट। सो दिस वाज द पॉइंट्स हु आर द अगेंस्ट ऑफ डेटा एप्लीकेशन। ओके, सो हमने क्या देखा, पहले डेटा रेप्लिकेशन देखा, उसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन देखे, राइट। आफ्टर दैट रीजन ऑफ रेप्लिकेशन देखे, फिर हमने देखा कि रिलायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो उसको हेल्प कर रहे हैं, बट कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके अगेंस्ट है, राइट। सो उसके अगेंस्ट कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी, प्राइस, टाइम एंड बैंडविड्थ। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल लीडर रेप्लिकेशन. So what is single leader application? So in single leader application, the leader, or you can say that master or primary, replicates data to all of its followers, slaves, read replicate secondary nodes. This is the most commonly used mode of replication. इसमें क्या होगा, आप एक सिंगल लीडर रेप्लिकेशन होगा, एक सिंगल, जहां पे आपका सिंगल लीडर की बात हुई, मतलब एक ही जो लीडर है वो उसके ऊपर काम करने वाला है, वही रेप्लिकेट करने वाला है, वही जो बोलेगा, वही उसके स्लेव्स जो हैं या उसकी रेप्लिकाज हैं वो काम करेंगे. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड mode of replication. Whenever a new write come to the master node, it keep that write to its local storage and send the same data to its replicas as change stream or replication log. Each slave then update its own local copy of data in the same order as was processed by leader node. ठीक है, अभी लीडर नोड है, उसके पास कोई राइट करने का कुछ
आया कि आपको अपनी कॉपी में ये चीज राइट करनी है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, पहले अपनी जो कॉपी है उस पर राइट करेगा, आफ्टर दैट जो सेम मैसेज है वो अपनी रेप्लिकास को भेज देगा कि ओके मैंने ये ऑलरेडी अपडेट किया है, नाउ दिस इज योर टर्न टू अपडेट द डेटा, ओके, that is single leader replication. Okay, after that synchronous versus asynchronous leader based replication. When a write comes to a leader, the leader can send the same write request to all its follower and wait for the acknowledgement from each of them, right? जब राइट कम आया, जब राइट आया लीडर के पास कि उसको अपनी डेटा में कुछ राइट करने हैं, देन उसने क्या किया, सेम राइट रिक्वेस्ट जो है वो अपने जो स्लेव्स थे उनको भेज दी एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मेरा ये काम हो गया है, तो जो उसके स्लेव्स हैं दे विल रिटर्न बैक द एक्नॉलेजमेंट, ओके। सो वंस द लीडर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट इट कैन देन नोटिफाई द क्लाइंट ऑफ सक्सेसफुल राइट। जैसे ही लीडर के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा ही विल रिवर्ट बैक टू द क्लाइंट दैट हमारा जो काम था राइट का वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दिस इज द सिंक्रोनस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या है, रेप्लिकेशन का एक सिंक्रोनस मोड है। असिंक्रोनस मोड में क्या होता है, द लीडर सेंड राइट टू इट्स फॉलोअर एंड डजंट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, मतलब उसको मैसेज का रिप्लाई चाहिए ही चाहिए, राइट। सिंक्रोनस क्या है, यहां से मैसेज गया वहां से रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी कम्युनिकेशन होगा। असिंक्रोनस में क्या होगा, अपना लीडर ने मैसेज भेज दिया, नाउ ही विल नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, ओके, ही विल नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट। दिस वे द लीडर कैन कंटिन्यू टेक राइट इवन ऑल इट्स फॉलोअर नोट फेल। वो क्या करेगा, अब जो भी इसको रिक्वेस्ट आ रही है वो लेता जाएगा, उसको नहीं पता कि उसके जो नोड्स हैं, जो स्लेव नोड्स हैं वो फेल हो चुके हैं, कुछ उसको आइडिया नहीं है। असिंक्रोनस रेप्लिकेशन हैज ओन demerits like consistency issues, replications, lags, etc. Obviously जब उसको पता ही नहीं है कि जो उसके नोड्स हैं they are fail, तो वो क्या कर रहा है, he is accepting the right request and continuously sending to its follower. So उससे क्या होगा, consistency issues आएंगे, right, और replication lags आएंगे, ठीक है। After that, replication as a scaling technique. This is very important topic, okay. Replication and caching for performance are widely applied as caching techniques. Scalability issue generally appear in the form of performance problem. Placing copies of data close to the processor using them can improve performance through reduction of excess time and thus solve scalability problem, okay. स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अगर आपका स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम कुछ आ नहीं रही है, आपका डेटा जो है वो हर जगह पे सेट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेस टाइम उसका कम हो जाएगा एंड द परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव्ड, ओके। आफ्टर दैट द टॉपिक इज रेप्लिका प्लेसमेंट। हमें रेप्लिका रखनी कहाँ है, रेप्लिका तो हमने बना दी है, सो वेयर वी आर गोइंग टू कीप दैट रेप्लिका, राइट। सो अ key issue for a distributed system that support replication is to decide where, when and by whom replica should be placed and subsequently which mechanism is used for keeping the replica consistent, okay. So replica तो हमने बना ली, but where we are going to place them, okay. So it's a key issue in distributed system that support application that it is going to decide where, when and by whom replica should be placed, okay. और कौन सा mechanism जो है हम use करने वाले हैं for placing that replicas, okay. So the placement problem itself should be split into two problems. उसकी जो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है रेप्लिका प्लेसमेंट की, वो ऑलरेडी पहले ही दो प्रॉब्लम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्लेसिंग रेप्लिका सर्वर, सेकंड वन इज प्लेसिंग ऑफ कंटेंट। मतलब हमें जो सर्वर है रेप्लिका के उनको कहाँ प्लेस करना है, जो कंटेंट है उसको कहाँ प्लेस करना है, ओके। सो दिस इज द डायग्राम फॉर प्लेसमेंट रेप्लिका, ओके। सो जो फर्स्ट सर्कल है वहां पे हमारे क्लाइंट्स होंगे, ओके। सो आफ्टर दैट द क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिकास जो होंगी वो सेकंड सर्कल में होंगी। थर्ड सर्कल है सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिकास एंड जो परमानेंट रेप्लिकास हमारी बनी हुई है वो इंटरनल सर्वर में होंगी। और जो परमानेंट रेप्लिकास होंगी वो किसकी तरफ वो करेंगे, दैट इज सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिकास। और क्लाइंट जो है वो कौन सी जो रेप्लिकास है उनको इनिशिएट करेंगे, दैट विल बी क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिकास, ओके। सो कंटेंट रेप्लिकेशन एंड प्लेसमेंट आपको समझ आ गया। सो परमानेंट रेप्लिकास और ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सो आप ये डायग्राम देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। जो परमानेंट रेप्लिकास है वो इनसाइड बिल्कुल जो नीचे अंदर है वहां रखी जाएंगी, वो जो है वो सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिकास को यूज करेंगे, क्लाइंट जो है वो क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिकास को यूज करेंगे। सो
विल सी वन बाय वन. सो पहले आएगा परमानेंट रेप्लिका. ओके, so content replication and placement. Okay, when it comes to content replication and placement, three different type of replicas can be distinguished, locally organized. So first one is permanent replica. So permanent replica can be considered as the initial set of replica that constitute a distributed data store. In many cases the number of permanent replica is small. Consider example, for example a website. Okay, distribution of a website generally comes in one or two forms. The first kind of distribution in one in which the file that constitute a site are replicated across a limited number of server at a single location. Whenever a request come, it is forward to one of the server, for instance using round robin strategy. इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वेबसाइट में जनरली वो वन और टू फॉर्म्स में होती है. द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन वन विच फाइल दैट कॉन्स्टिट्यूट अ फाइल दैट रेप्लिकेटेड अक्रॉस द लिमिटेड नंबर ऑफ सर्वर. राइट, वो लिमिटेड नंबर ऑफ सर्वर के पास उसकी जो कॉपीज है वो चली जाती है. तो क्या होता है, जब उसके पास लिमिटेड सर्वर के पास जो कॉपीज जाती हैं, वेन एवर रिक्वेस्ट कम्स इन, जब उसके पास रिक्वेस्ट आएगी, इट इज फॉरवर्ड टू वन ऑफ द सर्वर. वो क्या करेगा, जिस सर्वर के पास भी उसने अपनी कॉपीज रखी है उसके पास जो है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा. फॉर इंस्टेंस यूजिंग अ राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी. एक टाइम स्लॉट, रॉबिन राउंड में क्या होता है, एक टाइम दे दिया जाता है ना हमें कि इस टाइम के लिए आपको एक्सेस करना है. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने रॉबिन राउंड स्ट्रैटेजी पढ़ी होगी ना, एक टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वो एक्सेस करते जाते हैं. सेम जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, जिस सर्वर के पास जो है वो डेटा मिल जाएगा उसको, वहां से वो उसको एक्सेस कर लेगा. ओके, देन सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिकास. सो process that can dynamically host a replica on request of another server in the data store. Okay, in contrast to permanent replica, server initiated replica are a copy of data store that exists to enhance performance, which are created and initiated of the data store. So basically data store क्या है, ओनर है ना. बेसिकली जो रेप्लिकास है उनका ओनर्स भी तो एक होगा ना. जैसे वेबसाइट में हमने पीछे पढ़ा कि वेबसाइट में क्या होगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी दे कैन वो सर्वर में डिवाइड कर देगा, तो वो एक एज अ ओनर का काम करेगा ना, डेटा स्टोर का काम करेगा ना. सो प्रोसेस दैट डायनामिकली होस्ट अ रेप्लिका ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अनदर सर्वर इन द डेटा स्टोर. इन कॉन्ट्रास्ट टू परमानेंट रेप्लिका, सर्वर इनिशिएट रेप्लिका आर कॉपीज ऑफ अ डेटा store that exist to enhance the performance and which are created at the initiative of the data store. Okay, consider एक example देके हम लोग समझ लेते हैं ये चीज. A web server placed in न्यूयॉर्क. Okay, जो वेब सर्वर है वो न्यूयॉर्क में है. Normally this server can handle incoming request quite easily, but it may happen that over a couple of days a sudden burst of requests come in from unexpected location far from the server. In this case, it may be worthwhile to install a number of temporary replicas in region where the request are coming from. So for example, एक सर्वर हमने न्यूयॉर्क में प्लेस किया हुआ है, राइट. नॉर्मली उसमें इतनी रिक्वेस्ट नहीं आती है, बट एक ऐसा टाइम आ गया कि सडनली एक बर्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट आ गया. बहुत बोल सकते हैं अब अनकाउंटेबल जो रिक्वेस्ट है वो अनएक्सपेक्टेड लोकेशन से आने लग गई. तो वो क्या करेगा, इट मे बी वर्थवाइल इंस्टॉल अ नंबर ऑफ टेम्परेरी रेप्लिकास. वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी रेप्लिकास वो पर्टिकुलर रीजन के लिए बना देगा जहां से वो उसको रिक्वेस्ट आ रही है. ओके, द प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक प्लेसिंग रेप्लिका इज ऑल्सो बीइंग एड्रेस्ड इन वेब होस्टिंग सर्विस. दिस सर्विसेज ऑफर अ कलेक्शन ऑफ सर्वर स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेट दैट कैन मेंटेन एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू वेब फाइल्स बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी. ओके, to provide optimal facilities, such hosting service can dynamically replicate files to server where those files are needed to enhance performance that is close to the demanding. Okay, after that, client initiated replicas. What are the client initiated replicas? So an important kind of replica is one initiated by a client. Client initiated replicas are more commonly known as client or cache. In essence, a cache is a local storage facility that is used by a client to temporarily store a copy of the data it just requested. So एक important टाइप की जो रेप्लिका है वो है क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका. ओके, सो क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका कौन सी होती हैं, जिनको हम कॉमनली कैशे भी बोलते हैं. ठीक है, इन एसेंस अ कैशे इज लोकल स्टोरेज फैसिलिटी. जो कैशे होती है वो एक लोकल स्टोरेज फैसिलिटी होती है दैट इज यूज्ड बाय क्लाइंट टू टेम्पररी स्टोर ऑफ द डेटा. कैशेज हम लोग क्या करते हैं, कैशे क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है ना, वो ही यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो कैशे है उनको हम एक लोकल स्टोरेज फैसिलिटी की तरह एक टेम्परेरी कॉपी को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं जो उसको रिक्वेस्ट आई है. ठीक है,
In principle, managing the cache is left entirely to the client. The data stored from where the data had been fetched has nothing to do with keeping cache data consistent. However, as we shall see, there are many occasions in which the client can rely on participation from the data store to inform when cache data has become stale. Okay, so this is very simple English I have write कि आपको समझ आ जाए normally भी, ठीक है. So client cache are used to improve access times of data. Client cache क्यों यूज होते हैं? उसका जो एक्सेस टाइम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट. नॉर्मली व्हेन अ क्लाइंट वांट एक्सेस टू सम डेटा इट कनेक्ट्स टू द नियरेस्ट कॉपी ऑफ द डेटा स्टोर. मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दिया है. जब भी उसको डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, जो उसका नियरेस्ट होगा ना वहां से वो डेटा कॉपी को उठाएगा और वहां से उसको डेटा को फेच करेगा, उसको रीड करेगा, अगर उसको स्टोर करना है तो उसको स्टोर करेगा, एंड अगर उसको जो भी उस पर काम करना है वो कर सकता है, राइट. व्हेन मोस्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व ओनली रीडिंग डेटा, परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय लेटिंग द क्लाइंट्स टू रिक्वेस्टेड डेटा इन नियरबाय कैशे. सच अ कैशे कुड बी लोकेटेड ऑन द क्लाइंट मशीन और ऑन द सेपरेट मशीन in the same local area network as the client. The next time that same data needed to be read, the client can simply fetch it from the local cache. वो क्या करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट है उसको अपने कैशे में स्टोर करके रख लेगा. नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट को उसको यूज करना है या फेच करना है वो अपने लोकल कैशे से उसको उठाएगा एंड यूज कर लेगा. दिस स्कीम वर्क फाइन एज लॉन्ग एज द फेच डेटा हैव नॉट बीन मॉडिफाइड इन द मीन टाइम. बट ये तब तक ही काम करेगा जब तक आपने जो डेटा स्टोर किया है उसको आपने अपडेट नहीं किया. अगर आपने डेटा को अपडेट कर दिया तो हो सकता है कि जो पुराना डेटा हो वो अलग काम करेगा और जो नया डेटा होगा वो कम काम करेगा. तो हो सकता है आपको कुछ इश्यू भी फेस हो जाए, तो आपको अगर और ऐसा भी हो जाए कि इन बिटवीन अगर वहां पे डेटा फेच हो गया तो उस डेटा को आपको फिर से फेच करना पड़ेगा. ओके, डेटा आर जनरली केप्ट इन कैशे फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ. सो डेटा जो होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए कैशे में पड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिवेंट एक्सट्रीमली स्टेल डेटा फ्रॉम बीइंग यूज्ड और सिंपली टू मेक रूम फॉर अदर डेटा, राइट. Whenever requested data can be fetched from the local cache, a cache bit is said to have occurred. To improve the number of cache hit, cache can be shared between the clients. डेटा क्या होता है, जनरली एक लिमिटेड अमाउंट के लिए ही हम लोग कैशे में रख सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिवेंट एक्सट्रीमली स्टेल डेटा फ्रॉम बीइंग यूज्ड और सिंपली मेक अ रूम फॉर अदर डेटा. अगर हम लोगों ने डेटा को बहुत टाइम के लिए रखा और नया डेटा आ गया तो हम उसको कहाँ रखेंगे, तो वो क्या कर, इसीलिए हम लोगों को डेटा को एक लिमिटेड अमाउंट के लिए अपने कैशे में रखना होता है, राइट. व्हेन एवर रिक्वेस्टेड डेटा कैन बी फेच फ्रॉम लोकल कैशे, जब हम रिक्वेस्टेड डेटा को लोकल कैशे से फेच करते हैं, कैशे बिट इज सेड टू हैव अकर्ड. ओके, टू इंप्रूव द नंबर ऑफ कैशे हिट, कैशे कैन बी शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट्स. जो नंबर ऑफ क्लाइंट है वो कैशे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो प्लेसमेंट ऑफ क्लाइंट कैशे इज रिलेटिवली सिंपल. अ कैशे इज नॉर्मली प्लेस्ड ऑन द सेम मशीन एट हिज क्लाइंट्स or otherwise on a machine shared by the client on the same local area network. Okay, so basically कैशे कहाँ होता है, अपना पीसी का कैशे हम लोग अपने पास रखते हैं, और अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क से अटैच है तो आप एक शेयर्ड कैशे, क्लाइंट जो है वो एक शेयर्ड कैशे को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है. So yet another approach is to place cache server at specific point in the wide area network and let a client locate the nearest server. Okay, तो एक और पॉइंट है जहां से जो नियरेस्ट कैशे है उसको क्लाइंट को पड़ेगा लोकल सर्वर पे, वो उसको यूज कर लेगा. When the server is located, it can be requested to hold copies of the data and the client was previously fetching for somewhere else. Okay, so basically कैशे में जो डेटा है वो एक लिमिटेड स्टोर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं. जब भी आपको जरूरत होगी यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम योर लोकल कैशे, राइट. बट कंडीशन ये है कि डेटा जो है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द टुडे. इस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया, we have completed the replica management. Okay, after that the diagrams, the architecture, you can say the replica management. After that how the data replication work, we already covered benefits of data replication. After that why the reason of replication, right, the reliability and the performance are the reason for application. But if replication help to improve the reliability and the performance, who could be against it, right. अगर हमारा जो रेप्लिकेशन है वो रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, प्राइस, टाइम एंड बैंडविड्थ. ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड सिंगल लीडर एप्लीकेशन. आफ्टर दैट सिंक्रोनस वर्सेस asynchronous लीडर बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, आफ्टर दैट रेप्लिकेशन एज अ सिंगल स्केलिंग टेक्निक. रेप्लिका प्लेसमेंट कहाँ होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी
जो replica है we can keep. Okay, after that content replication and placement, permanent replica, server initiated replica, after that client initiated replica. Okay, so that's it for today's video. If you have any question, any query about these videos, like for replica management or server initiated replicas, the client initiated replicas, you can ask me in comment section. Okay, so till then, bye.